Hello, students. Good morning to all of you. This is Abhishek Agnihotri, your marketing teacher from Springdale College, Pilibhit. I welcome you in my YouTube channel. Today, we are going to discuss about packaging and how packaging is important for us and how packaging helps a marketer in improving their performance in the market. Okay, so let us start with the introduction of packaging. Packaging can be defined as art, science, and technology of preparing goods for transport and sale. Okay, so you can easily find out the definition on your screen that how packaging is important in the marketing. Packaging as an industry has two sectors: those who prepare the packaging material and those who convert these material into packages. जब भी आप देखते होंगे तो पहली चीज़ तो आपको अलग अलग पैकेजिंग की लेयर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर दिखाई देती होगी। ठीक है, तो पहली तो वो कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं इस पैकेजिंग प्रोसेस में जो पैकेजिंग मटेरियल को प्रिपेयर करती हैं, चाहे वो पेपर पैकेजिंग हो, चाहे वो कार्डबोर्ड पैकेजिंग हो या फिर पॉली पैकिंग हो। ओके, और दूसरी कंपनीज वो हैं जो पैकेजिंग के लिए मटेरियल को प्रिपेयर करती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे आपको टर्सरी पैकिंग का यूज़ करना पड़ता है। ओके, हार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड और वुडन पैकेजिंग का आप लोग यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सो ऑल दोज intermediaries which do those functions, these are involved in the packaging function. New packaging material are fast replacing the old ones. Okay, आप लोग देख रहे होंगे कि पहले जिन प्रोडक्ट्स को आप यूज़ करते थे उनकी पैकेजिंग में धीरे धीरे हर कुछ मंथ्स के अंदर आप लोगों को डिफरेंस दिखाई देता है। ओके, सो they are doing continuous improvement in their packaging function in order to satisfy their customer in a better way. A good packaging conveys the quality of product which is distinct from the value of product. Okay, a good packaging also improves the quality of product. जैसे कि आप लोग देखते होंगे, if you are going to purchase any kind of cookies, okay, if it is packed in a good packaging, then you are ready to pay extra for that product. Whenever food products are bought, you can see there on the retail shop that these are offered in different types of packaging. तो पैकेजिंग अगर अच्छी है तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा पे करने के लिए रेडी रहते हैं। ओके, सो somewhere it is also contributing in the price of product. Okay, price ultimately lead to profit for the company. So this is very important for a company to understand that packaging is very important. Attractive packaging is also an efficient point of purchase and stimulate publicity for sale. It has been observed that packaging is an important advertising means of helping in carrying messages for the marketer to consumer. Packaging वो ultimate प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी का मैसेज होता है जो डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचता है। ओके, हो सकता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या फिर किसी और मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू प्रॉपर वे में कस्टमर तक इंफॉर्मेशन ना पहुंच रही हो, बट through the packaging, the customer can easily access the information and the message a marketer want to convey to his consumer. Okay, packaging as a function means helping in carrying message from marketer to consumer. Packaging जो है वो हम लोगों के मार्केटर के मैसेज को कंज्यूमर तक पहुंचाने में भी हेल्प करता है। ओके, पैकेजिंग एज अ फंक्शन हैज़ टू सेपरेट डायमेंशंस। अगर पैकेजिंग की बात की जाए तो ये हम एज अ मार्केटर को दो तरह से हेल्प करता है: द फिजिकल एस्पेक्ट रिलेटेड टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द बिहेवियर एस्पेक्ट रिलेटेड टू द आर्ट ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन एसोसिएटेड विद द बायर बिहेवियर। ओके, फिजिकल एस्पेक्ट की अगर बात करें तो फिजिकल एस्पेक्ट में क्या आता है, जो आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग देखने में कैसी है। ओके, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन क्या क्या मेंशन्ड है।
आप उसे टेक्निकली कितना साउंड बना रहे हैं, कितना सेफ्टी पर्पज से अच्छा बना रहे हैं। तो ये सब क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट की बात करें तो आप देखते होंगे पैकेजिंग में जिस तरह का प्रोडक्ट होता है तो उसे कैरी करने के लिए उसी तरह की डिजाइन उसे दी जाती है। ओके, आप फ्रूट प्रोडक्ट में देखते होंगे, आप ऑयल प्रोडक्ट में देखते होंगे, एक हैंगिंग बैग टाइप के डिजाइन में पैक करके उसे दिया जाता है, बिकॉज इट इज easy for a customer to carry that product in that case. Okay, packaging concept की बात करें अगर, then in most cases marketers define packages as the fifth P of marketing. We already know that marketing mix is made of 4 P's, that is product, price, place and promotion. Okay, so packaging also play a very important role in making a goodwill in the mind of customers. So it is defined by many of the marketers as a fifth P of marketing. It provides an enhanced value to the product, and there are 3 levels of material of packaging. किसी भी मटेरियल को पैक करने के लिए हम लोग 3 लेवल्स का यूज करते हैं अपने अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। फर्स्ट इज प्राइमरी पैकेज, सेकेंड इज सेकेंडरी पैकेज एंड थर्ड इज टर्सरी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। पैकेजिंग में भी प्राइमरी विच रेफर टू द प्रोडक्ट्स इमीडिएट कंटेनर, किसी प्रोडक्ट को जिसे आपका कस्टमर यूज करने वाला है उसकी इमीडिएट पैकेजिंग जो होती है वो क्या होती है, प्राइमरी पैकेजिंग, सच एज द पेट बॉटल, टेट्रा पैक, कैन बी केन और अ बॉक्स। ओके, और सेकेंडरी विच रेफर टू एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन दैट आर रिमूव्ड वंस द प्रोडक्ट इज रेडी, सच एज अ ट्यूब ऑफ शेविंग क्रीम विच इज कवर्ड बाय द कार्डबोर्ड। तो अगर हम लोग शेविंग क्रीम की बात करें तो शेविंग क्रीम एक्चुअल में एक ट्यूब के अंदर पैक होती है, तो शेविंग क्रीम की इमीडिएट पैकिंग क्या हो गई, वो ट्यूब। ओके, लेकिन उस ट्यूब को भी एक कैरी बॉक्स में पैक किया जाता है, एक कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक किया जाता है, तो वो कार्डबोर्ड बॉक्स उसकी सेकेंडरी पैकेजिंग हो गई। ओके, अगर आप कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक की इमीडिएट पैकेजिंग होती है उसकी बॉटल, चाहे वो ग्लास बॉटल हो या फिर केन हो या फिर पेट बॉटल प्लास्टिक की भी हो सकती है, दैट इज द इमीडिएट पैकेजिंग। लेकिन आप देखते होंगे उसके ऊपर एक प्लास्टिक की लेयर भी चढ़ाई जाती है। प्लास्टिक की लेयर किस लिए, क्योंकि उसे सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए और दूसरा अपनी इंफॉर्मेशन को मेंशन करने के लिए। सो दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी पैकेजिंग। तो जो इमीडिएट पैकेजिंग होती है वो प्राइमरी पैकेजिंग कहलाती है, और जो उसके ऊपर से एडिशनल लेयर फॉर सेफ्टी एंड इंफॉर्मेशन लगाई जाती है उस लेयर को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग। द डिफरेंट लेवल्स ऑफ पैकेजिंग टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस वुड वेरी विद द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट कौन कौन सी लेयर के अंदर पैक किया जाएगा ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट का नेचर क्या है और उसे कैसे यूज किया जाएगा। वेदर एफएमसीजी प्रोडक्ट, ड्यूरेबल कंज्यूमेबल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड लिक्विड प्रोडक्ट। तो आपको ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट का नेचर क्या है। आफ्टर दैट यू विल डिसाइड अबाउट द पैकेजिंग ऑफ योर प्रोडक्ट। ठीक है, आप लोग अगर बिस्किट एफएमसीजी में किसी बिस्किट की बात करें तो बिस्किट जब पैक होके आपके पास आता है तो उसमें आप देखते होंगे जो अच्छी कुकीज होती हैं उनमें इमीडिएट पैकेजिंग एक ट्रांसपेरेंट पॉली पैक के अंदर होती है। ठीक है, तो वो उसकी प्राइमरी पैकेजिंग हो गई। उसके बाद उसे एक ट्रे में लगाया जाता है जो प्लास्टिक की ट्रे होती है। ठीक है, फॉर सेफ्टी पर्पस, क्योंकि ट्रे में होते हैं तो वो दबने पे भी कुकीज ब्रेक नहीं होती, टूटती नहीं है। ओके, टर्सरी पैकेजिंग, उसके बाद में तीसरी लेयर कौन सी होती है जो आपको सामने से दिखाई देती है बिस्किट की, या तो वो कार्डबोर्ड का बॉक्स हो सकता है या फिर वो पॉली पैक भी हो सकता है। ऑलराइट, सो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट दैट हाउ पैकेजिंग इज बीइंग डन। इट शुड बी रिगार्डेड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ अ प्रोडक्ट वुड बी मीनिंगलेस if the package designed to carry the product from the factory to the ultimate consumer is not adequate। अगर एक कंपनी जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है प्रोडक्ट की, वहाँ से लेके
अल्टीमेट कंज्यूमर के पास जब तक प्रोडक्ट पहुंचता है वहां तक अगर उसकी सेफ्टी नहीं हो पा रही है या फिर वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं पहुंच रहा है, देन इट इज़ ऑफ नो वर्थ, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पैकेजिंग में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रोल्स ऑफ पैकेजिंग, हाउ packaging play an important role for a customer and for marketer as well. Packaging is an important element in the formulation of marketing plan as it adds with promotion and performance the role of passive salesman in addition to protecting the product. ओके, पैकेजिंग का जो रोल है वो सिर्फ प्रोटेक्शन तक ही सीमित नहीं रह गया है। आजकल आप लोग देखेंगे कि पैकेजिंग कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए भी यूज़ की जाती है। ठीक है, उसके लिए अपनी जो अपर मोस्ट पैकेजिंग होती है, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, उसके ऊपर अच्छे फीचर्स को यूज़ करना, अच्छे ग्राफिक्स को यूज़ करना और अट्रैक्टिव कलर्स को यूज़ करना। ओके, दैट इज़ फोकस्ड बाय अ मार्केटर इन टुडेज सिनेरियो because it performs the passive roles of salesman। एक तरह से अगर आप देखें, आप शो केस में रिटेल शॉप पे जब जाते हैं तो शो केस में ऐसे प्रोडक्ट को देख के ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जिसकी पैकेजिंग अच्छी होती है और आपके दिमाग में तुरंत एक ओपिनियन क्रिएट होती है, एक परसेप्शन क्रिएट होता है दैट दिस प्रोडक्ट शुड बी गुड बिकॉज इट इज़ इन गुड पैकेजिंग। ओके, so in the absence of salesman the package should be able to grab the eyeball of the buyer। जिस बारे में मैं पहले बात कर रहा था वही लिखा हुआ है कि अगर कोई आपको प्रोडक्ट लेने के लिए इंसिस्ट नहीं कर रहा है या फिर रिटेलर आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता रहा है तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर उसकी पैकेजिंग अच्छी है तो वो आपका ध्यान अपनी तरफ ज़रूर अट्रैक्ट करेगा प्रोडक्ट। ओके, सो योर packaging should be done in the way that it should catch the eyeballs of buyers। जो भी बायर आपका शॉप पे जाए वो आपकी पैकेजिंग से इतना अट्रैक्ट हो कि वो आपके प्रोडक्ट की डिमांड अपने आप करे। ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। गुड पैकेजिंग में लीड टू इम्प्रूव्ड कस्टमर एक्सेप्टेंस। आपने देखा होगा कि many of the detergent companies, many of the food companies and many of FMCG companies time to time change their packaging according to the convenience of customer। आप देखते होंगे वॉशिंग पाउडर अब जब आता है जिस पैकेजिंग में, अगर वो पैकेजिंग बड़ी है, ओके, बल्क में आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर आपको एक एडिशनल पैकेजिंग दी जाती है जिससे आप उसे कैरी करके घर तक आसानी से ले जा सकें। ओके, and also the colors used in that packaging are also very attractive। ठीक है, so it pushes the customer towards your product for accepting it। तो किसी तरह से वो पैकेजिंग जो है वो आपके कस्टमर का ध्यान अपनी तरफ खींचती है और कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा एक्सेप्ट करता है। द प्रोडक्ट पैकेज हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रमोशनल फंक्शन। पैकेजिंग जो है वो आपका प्रमोशनल फंक्शन में भी हेल्प करती है क्योंकि जैसे ही आपके प्रोडक्ट के लोगों को, आपके पैकेजिंग को, आपके कलर्स को कस्टमर आइडेंटिफाई करने लगता है देन ही रिकॉग्नाइज योर प्रोडक्ट फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस ऑल्सो। आप लोग ध्यान से अगर बात को सुने देन जैसे कि वोडाफोन का लोगो है, ओके, अगर वोडाफोन का लोगो है उसे आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो आपको जहाँ भी एडवर्टाइजमेंट में वोडाफोन का लोगो दिखेगा तो आपको वहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये वोडाफोन है। पीपल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई बाय द लोगो ऑफ दैट कंपनी। ओके, सो दिस इज ब्रांड एसोसिएशन ऑफ द कस्टमर, सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। इस्टेब्लिशिंग मीनिंगफुल कम्युनिकेशन विद द कस्टमर। आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो पैकेजिंग के ऊपर रहती है तो उससे कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में, उसके यूज़ के बारे में और उसे कैसे डिस्पोज करना है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपकी पैकेजिंग से मिल जाती है। डिज़ाइनिंग द प्रोडक्ट पैकेज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड एटीट्यूड्स विल एनेबल द मार्केटर टू पुश द प्रोडक्ट। ओके, डिज़ाइनिंग द प्रोडक्ट पैकेज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंस। जैसे जैसे कस्टमर की नीड और उसका टेस्ट चेंज होता जाता है, ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी पैकेजिंग स्ट्रेटजी को भी चेंज करते जाते हैं और अपने
प्रोडक्ट को पैकेजिंग में एनहांसमेंट करते हुए कस्टमर के लिए ऑफर करते हैं, जिससे वो इजीली आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर पाए। कंज्यूमर पैकेजिंग इज ऑल्सो इंटेंडेड टू ऑफर बेटर कन्वीनियंस टू द कंज्यूमर एंड प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम पिलफरेज एंड डैमेज। पैकेजिंग का एक फंक्शन ये भी है कि वो कस्टमर के लिए कन्वीनियंट रहे कैरी करने में, और दूसरा आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट भी कर पाए। ओके, इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट यूनिट वैल्यू रियलाइजेशन कैन इंक्रीज विद द गुड पैकेजिंग। जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग एनहांस होती है, वैसे वैसे आपकी सेल भी इंक्रीज होती है और यूनिट वैल्यू प्रोडक्ट की आपकी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा जो भी ऑयल कंपनीज हैं, मस्टर्ड ऑयल जो लोग सेल करते हैं, तो उनका जो जिस इमीडिएट पैकेजिंग, मतलब जिस कार्टन या फिर जिस प्लास्टिक बॉक्स के अंदर उसे पैक किया जाता है, प्लास्टिक बॉटल के अंदर, उसमें एक हुक दिया जाता है, उसमें एक हैंडल टाइप का दिया जाता है, जिससे कस्टमर उसे आसानी से कैरी कर सके। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर कन्वीनियंस ऑफ द कस्टमर। सो पैकेजिंग ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल in convenience of customer. Now we are going to discuss about importance of packaging, how packaging is important for marketer and consumer as well. Initially packaging was considered as a production related function and activity. शुरुआत में जब मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट नया नया आया था, तो उस टाइम पे पैकेजिंग भी प्रोडक्शन का ही एक पार्ट माना जाता था। इमीडिएटली जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पे उसकी पैकेजिंग हो जाती है। While in the current context packaging has completely changed the due competition, लेकिन आज के मार्केट में आप देखेंगे पैकेजिंग की वजह से पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है। ठीक है, पैकेजिंग अगर अच्छी है तो उसके लिए मार्केटर एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है और कस्टमर एक्स्ट्रा पे करने के लिए रेडी है। सो द मेन थिंग इज the point where the customer feel attracted towards a particular product. Okay, new product development in the packaging have forced marketing manager to focus on packaging design. आप देखते होंगे कि अगर हम पतंजलि प्रोडक्ट की बात करें, तो पतंजलि में ब्यूटी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट वो लोग पहले भी ऑफर कर रहे थे, ठीक है, बट इन मिडिल क्लास रेंज। नाउ दे हैव कम विद द प्रीमियम रेंज ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। अगर प्रीमियम रेंज की बात करें, तो अगर वो लोग किसी अच्छे प्रोडक्ट के लिए अच्छा प्राइस चार्ज कर रहे हैं कस्टमर से, तो उसकी पैकेजिंग आपको डिफरेंट मिलेगी। ठीक है, आप अगर बाथ सोप लेने जाते हैं मार्केट में, तो आप देखेंगे जो कॉस्टली सोप होंगे वो आपको पहले अंदर की प्राइमरी पैकेजिंग एक पॉली पैक में पैक होगा, फिर उसके बाद में एक सेकेंड पैकेजिंग होगी, थर्ड पैकेजिंग एक कार्डबोर्ड का अट्रैक्टिव सा बॉक्स होगा। ओके, तो इस तरह से पैकेजिंग में एनहांसमेंट करके आप अपनी वैल्यू को भी इंक्रीज कर सकते हो कस्टमर की नज़रों में। द फॉलोइंग एस्पेक्ट हाईलाइट सिग्निफिकेंस ऑफ पैकेजिंग इन द मार्केटिंग। नीचे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जो पैकेजिंग की इंपॉर्टेंस आपको बताएंगे। फर्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। ऑब्वियसली व्हेनेवर यू परचेज अ प्रोडक्ट, देन you get the desired information about the product from the packaging. पैकेजिंग के ऊपर मेंशन रहता है कि प्रोडक्ट क्या है, किस लिए बनाया गया है और किस तरह से कस्टमर उसे यूज कर सकता है। सेकेंडली, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द ब्रांड नेम। Foremost goal of the company behind the packaging is making the customer to recognize the brand. ब्रांड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पैकेजिंग के ऊपर मेंशन्ड होती है, जिसे आप कितनी भी दूर से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट इज थर्ड पॉइंट इज इट असिस्ट इन प्रोटेक्टिंग द प्रोडक्ट। द अल्टीमेट गोल ऑफ एनी काइंड ऑफ पैकेजिंग इज टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट. Protection is the foremost goal of any packaging, so it also give protection from the surroundings. Fourth point is it helps in product handling. आप लोग अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कोई रेफ्रिजरेटर परचेज करने जाते हैं, ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में आपको बहुत सारे एरो बने हुए दिखते होंगे और उसके ऊपर लिखा होता है कि दिस इज द फ्रंट पार्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, दिस इज द बैक पार्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, हेयर इज द हैंडल ऑफ रेफ्रिजरेटर, बिकॉज it assists you that how to handle the product and how to carry it at your home. आपको कैसे ले जाना है,
क्योंकि पैकेजिंग के अंदर आप उसे देख ही नहीं सकते कि रेफ्रिजरेटर किस कंडीशन में रखा हुआ है, ठीक है। तो उस पर आपको ऊपर की ओर ही इंफॉर्मेशन लिखी हुई मिल जाती है कि उसे कैसे हैंडल करना है। ओके, लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप की जो आउटर पैकेजिंग होती है वो एक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर पैक किया हुआ आपको मिलता है, ठीक है। तो उस बॉक्स के अंदर आपको एक हैंडल भी दिया होता है, जैसा कि आपको ब्रीफ केस में या सूट केस में दिखता है। उससे ये पता चल जाता है कि लैपटॉप को किस पोजीशन में और कैसे कैरी करना है। सो पैकेजिंग हेल्प्स इन द हैंडलिंग ऑफ प्रोडक्ट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, इट एड्स इन प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि पैकेजिंग का यूज़ प्रमोशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसके ऊपर आपका ब्रांड नेम होगा, उसके ऊपर आपका लोगो होगा, जिससे एक कस्टमर अट्रैक्ट होता है आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। इट हेल्प्स इन ऑफरिंग कंज्यूमर कन्वीनियंस एंड सेटिस्फैक्शन। आपके प्रोडक्ट को यूज़ एक कस्टमर बाद में करता है, लेकिन उससे पहले जो फर्स्ट व्यू होता है, आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो आपकी पैकेजिंग से ही कस्टमर के ऊपर पड़ता है। तो जितनी अच्छी आपकी पैकेजिंग होगी उतना ही सेटिस्फाइड और कन्वीनियंट आपका कस्टमर फील करेगा। ओके, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। ultimately if your customer is satisfied, then your sales will automatically enhanced. It adds the use of the product, आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा यूजफुल बनाता है। नेक्स्ट, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट। अभी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन या फिर प्रोडक्ट की सेफ्टी सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंड करती है, उसकी पैकेजिंग के ऊपर। ओके, सो दिस इज द फॉरमोस्ट गोल ऑफ एनी पैकेजिंग, दैट हाउ टू प्रोटेक्ट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. So guys, this is all for today's session. We discussed in this session what is packaging and how it is important for us. In next video, we will discuss some more concept related to product packaging. Till then, take care. Thank you.